Hello students, how are you? Today we are going to read a very interesting chapter and you will definitely love it. It's a very good story. Uh, Let me ask you a question. Which animal do you like the most to keep it as a pet? Yes, many of you would like to have dog as your pet or cat or cow and many others. But you know which animal is called the most loyal friend of an man? Yes, it's dog. Today we are going to read a story that how the dog found himself a new master, which is man. You have noticed that dog is only kept as a pet by the man. No other animal could keep dog as its pet, है ना? हमने सबने ये देखा है ना कि डॉग जो है वो हमारा सबसे लॉयल पेट होता है और सिर्फ मैंने ही नहीं रखा है, बाकी भी एनिमल किसी भी एनिमल को अपना पेट नहीं रख पाया है ना? तो दिस इज द स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर. आखिरकार डॉग ने अपना नया मास्टर कैसे ढूंढा. एंड दिस इज द सेकंड चैप्टर. हियर इज द स्टोरी पिक्चर. The small animal dog like is a dog and the big animal which is also dog like is wolf, है ना? Let's start. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. And he set out to find such a master. He walked and he walked, and he met a kinsman of his, a big wolf, who was as strong as he was fierce. "Where are you going, dog?" the wolf asked. "I am looking for someone to make up service with. Would you like to be my master, wolf?" "I don't see why not," the wolf said, and this agreed upon. The two of them went on together. They walked and they walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes, and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. "What's come over you, master?" he asked. "What has frightened you so?" "Can't you see? There is a bear out there, and he might eat up both of us, you and me." Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then
We can both eat our fill. They walked on and soon saw a herd of cows. But just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. The bear looked out from behind a tree, and then he too ran hastily deeper into the forest. यहाँ देखो बच्चों, the bear is hiding behind a tree, and what is he saying? That cows are running, and on seeing this, he also ran hastily to the forest. That and dog was strange that why the bear is frightened. Now why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion? Who is he? Don't you know? He is the strongest beast on earth. Well, well then, I will say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on earth. And off the dog went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life, and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. What is it, master? Is anything wrong? Asked the dog. He was surprised. I smell a man coming this way, the lion said. We would better run for it, or we will be in trouble. Oh, well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. And off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day, the dog is man's most loyal servant and knows no other master. सो डेट वॉज अ स्टोरी. अब आपको मैं ये स्टोरी थोड़ी हिंदी में समझा देता हूँ. शुरू के पेज पे चलते हैं. देखो क्या है यहाँ पे. ये देखो यहाँ से स्टोरी शुरू होती है कि डॉग चाहता है. पहले डॉग अपना जैसे वुल्व्स रहते हैं जंगल में, ऐसे ही डॉग भी अकेला ही रहता था, अपनी मर्जी के मुताबिक जीता था. लेकिन पर उसको वो लाइफ अच्छी नहीं लग रही थी. लिखा है ना, who was ill pleased with this way of life. क्यों? He was sick and tired of wandering about by himself. वो अकेला ही घूम घूम के जंगल में थक जाता था. अरे भाई क्यों घूमता था? Looking for food and being frightened by those who were stronger than he. वो खाने के लिए जंगल में दर दर ढूंढता था, और जैसे ही उससे कोई ज़्यादा शक्तिशाली एनिमल आता था तो उससे वो डर जाता था और छिप जाता था. और इसी बात से वो तंग आ चुका था. उसने क्या सोचा? ही थॉट इट ओवर. उसने सोचा एंड डिसाइडेड. उसने फैसला किया दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ.
तो उसने क्या फैसला किया कि मैं अपना एक ऐसा मास्टर ढूंढूं जो इस अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो और किसी से ना डरता हो। ठीक है, तो उसने क्या किया, वो उसने चलना शुरू किया। ही वॉकड एंड ही वॉकड एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज। किंग्समैन होता है रिश्तेदार, ठीक है, जो हमारे साथ हमारा रिश्तेदार हो, किंग्समैन। तो उसने जैसे ही वो घूम रहा था तो उसको रास्ते में उसका किंग्समैन मिला, उसका रिश्तेदार मिला। कौन मिला उसका रिश्तेदार? वल्फ, भेड़िया। अब भेड़िया को देखो और कुत्ते को देखो, दोनों एक ही फैमिली के नज़र आते हैं ना, भेड़िया, कुत्ता और ये भालू, बियर, है ना, ये सारे के सारे एक ही फैमिली के हैं। वेयर आर यू गोइंग डॉग? तो वुल्फ ने उससे पूछा कि भाई तुम किधर जा रहे हो? तो डॉग ने उनको बता दिया कि मैं तो अपना मास्टर ढूंढने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा मास्टर बनोगे? क्यों कहा उसने उसको? क्योंकि उसकी नज़र में वुल्फ उससे बड़ा था, स्ट्रांग था और फियर्स भी था। फियर्स क्या होता है? ये देखो यहाँ पे लिखा है फियर्स वायलेंट, ये लिखा है ना, फियर्स वायलेंट एंड फ्राइटनिंग, जिससे देख के हमें डर लगे। तो इसलिए डॉग ने वुल्फ को अपना मास्टर चुन लिया। तो वुल्फ ने कहा ठीक है, तुम, मेरे को इतराज़ नहीं है, तुम मेरे सर्वेंट बन सकते हो। लेकिन जैसे ही आगे चले तो वुल्फ भाग डर गया और फटाफट रास्ता छोड़कर झाड़ियों में छिप गया। डॉग भी उसके साथ साथ था। तो डॉग ने पूछा कि भाई तुम किससे डर रहे हो? लेकिन वाई व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो? आप इतना क्यों घबराए हुए हो? तभी बियर ने वुल्फ ने बोला कि देखो वहाँ पे बियर है। बियर मीन्स भालू, वो हम दोनों को खा सकता है। तभी डॉग ने कहा कि सॉरी वुल्फ, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। आई विल नॉट डू एनी सर्विस टू यू, क्योंकि आप सबसे स्ट्रॉन्गर नहीं है। उसने, डॉग ने तो यही सोचा था ना, यही फैसले किया था कि वो किसकी सर्विस करेगा, किसको अपना मास्टर बनाएगा? जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और जो किसी से नहीं डरेगा। ठीक है, तभी उसने उसको देखा कि बियर जो है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तभी उसने बियर को जाकर रिक्वेस्ट कर दी कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? तब क्या हुआ था, द लास्ट लाइन देखो, पढ़ो। द बियर एग्री टू दिस रेडिली। बियर ने फटाफट उसकी बात ये मान ली। फिर क्या हुआ, जब वो आगे जा रहे थे तो बियर ने कहा चलो हम एक गाय के झुंड के ऊपर हमला करते हैं और वहाँ से कुछ गाय मार लें, गाय मार कर खा लेंगे और हम दोनों का पेट भर जाएगा। लेकिन वो जैसे ही जाते हैं तो अभी वहाँ पे क्या देखते हैं कि जो, ये देखो ये जा रहे हैं, फोटो भी है, जाते हैं तभी क्या देखते हैं वो कि जो गाय हैं उनके ऊपर पहले किसी ने हमला किया हुआ है और गाय ना इधर उधर भाग रही हैं। और ये देखकर भालू जो है, बियर जो है, वो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और ध्यान से दिखता है ये गाय जो हैं, काउस क्यों भाग रही हैं। तो उसने देखा, अरे अरे चलो यहाँ से छिपो, फटाफट अंदर, वो अंदर जंगल की ओर भाग खड़ा होता है। तो डॉग उसको पूछता है कि तुम क्यों डर रहे हो मास्टर, आप क्यों डर रहे हो, हमने गाय के ऊपर हमला नहीं करना। तभी वो बियर बताता है, अरे मूर्ख सामने देखो, लॉयन है, लॉयन, बब्बर शेर, वो हम दोनों को मार देगा, चलो यहाँ से भागो। तब यहाँ पे डॉग को पता चलता है कि बियर भी उसके मास्टर बनने का काबिल नहीं है, क्योंकि ये भी किसी न किसी से डरता है। तो वो जाके क्या करता है, डॉग कह के आप क्या करेगा? हाँ बिल्कुल सही, वो लॉयन के पास चला जाता है। तो लॉयन को बोलता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? तो लॉयन कहता है हाँ बन जाऊंगा। तो अब काफ़ी देर तक जो डॉग है वो लॉयन के साथ रहता है, क्योंकि फॉरेस्ट में, जंगल में कोई भी लॉयन से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी डॉग की, खूब खाने को मिलता था और जंगल में कोई भी डॉग को डरा नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि अब जो डॉग था वो किसका, उसका मास्टर कौन था डॉग का? लॉयन। ठीक है, तो एक दिन ऐसे ही होता है कि लॉयन और डॉग दोनों साथ साथ जा रहे होते हैं। कहाँ पे जा रहे थे? एमिड बेयर क्लिफ्स।
ठीक है ना, एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर जा रहे होते हैं जिसके ऊपर कोई घास या ज़्यादा पेड़ नहीं है, तो वैसे चढ़ाई चढ़ रहे थे, तभी लॉयन एकदम से रुक गया। ऑल ऑफ अ सडन लिखा है ना, क्लिप्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लॉयन स्टॉप्ड, लॉयन रुक गया। तो क्या हुआ, डॉग सरप्राइज हो गया कि लॉयन ऐसे कि अभी रुकता नहीं, ऐसे क्यों रुक गया। तभी उसने, लॉयन ने खड़े होके गिव अ ग्रेट रॉर, उसने एक बड़ी सी दहाड़ा वो, ठीक है, दहाड़ लगाई उसने। तो फिर फटाफट उसने अपना ऊपर सूंघा और वापस चलना शुरू हो गया। तब डॉग ने उससे पूछा कि मास्टर क्या हुआ, हम आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। तब लॉयन ने बताया कि मुझे लगा है कि यहाँ पे मैन आ गया है, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो डॉग समझ गया कि लॉयन से भी ज़्यादा बहादुर, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा समझदार कोई है तो वो है मैन। तो उसने फैसला किया कि वो लॉयन को भी छोड़ देगा और अब किधर जाके रहेगा, मैन के पास, और उसी का सर्वेंट बनकर रहेगा। तब से आज तक डॉग जो है वो मैन का बेस्ट लॉयल सर्वेंट है, और किसी को वो अपना मास्टर नहीं मानता है। ठीक है, तो हाउ वाज द स्टोरी, यू लाइक इट? इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ आप इस स्टोरी को ध्यान से पढ़िए। जो पहले हमने लेसन इंग्लिश में पढ़ा था उसको ध्यान से सुनिए, वर्ड टू वर्ड सुनिए अच्छी तरह से, फिर अपनी बुक के ऊपर उसको खुद पढ़िए, ठीक है, और समझिए। और ये कहानी को अच्छी तरह समझने के बाद अपने छोटे भाई बहन या अपने पेरेंट्स को आप सुना भी सकते हो। एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश वाइल टेलिंग द स्टोरी। जब कहाँ फंस जाओ तो हिंदी में बता दो, ठीक है। वेरी गुड, आज के लिए इतना ही।